friends, welcome back to my channel. My name is Gaurav Bharadwaj. So, in the previous lecture, I have discussed what is impulse turbine and Pelton wheel turbine in detail. Today, we are going to discuss some numericals on Pelton wheel turbine. So, the very first numerical is like this. There is a Pelton wheel turbine that is working on the gross head of 510 meter. And the head lost in friction, that is HF, is 1 by 3 of the gross head. The rate of flow through nozzle is 2.2 meter cube per second. That is the discharge through the nozzle. Angle of deflection is 165 degree. So when the angle of deflection is 165, it means the value of phi is given to you. Phi is equals to 180 degree minus angle of deflection. So in this case, the value of phi is 15 degree. So for the given data, you have to determine power given by water to the runner. आपको क्या पता करना है कि आपकी रनर को वाटर कितनी पावर ट्रांसफर कर रहा है. नेक्स्ट यू हैव टू डिटरमाइन हाइड्रोलिक एफिशिएंसी. आपका जो वाटर रनर को पावर ट्रांसफर कर रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कितनी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मिल रही है. इन दिस केस value of coefficient of velocity is given to you as 1. It means v actual divided by v theoretical वो आपको 1 दे रखा है. And speed ratio is also given to you, that is u by v1, and it is given to you as 0.45. So for this given data, we will start the solution. So according to the given data, the value of gross head is given to us, that is 510 meter. The friction head is given as 1 by 3 of gross head. So for finding the friction head, what we have done, we have then divide of 510 by 3. We have divided 510 by 3 and that will be 170 मीटर. इसका मतलब है आपका जो फ्रिक्शन हेड है, जो फ्रिक्शन की वजह से जो आपका हेड लॉस हो रहा है वो आपका 170 मीटर है. तो आपका नेट हेड कितना हो जाएगा? नेट हेड, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, नेट हेड विल बी इक्वल टू ग्रॉस हेड माइनस फ्रिक्शन हेड. तो हमारा ग्रॉस हेड कितना है? 510. फ्रिक्शन हेड हमने निकाला है कितना? 170 मीटर. तो आपका नेट हेड कितना आ जाएगा? नेट हेड विल बी 340 मीटर. Angle of deflection is also given to you in the question, that is 165 degree. So value of phi will be 180 degree minus delta, that is angle of deflection. So 180 degree minus 165 degree equals to 15 degree. ओके, तो ये आपको phi की वैल्यू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन से मिल जाएगी. Q की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? Q will be given as 2.2 meter cube per second, and the CV is given to you and KU is given to you. So first we have to calculate the power. So for calculation of power, what we have to find out? First we have to find out the work done per second. Second, we have to find out the value of kinetic energy. Okay. So for starting the power calculation, first of all, we have to see this velocity diagram of Pelton wheel turbine. So this is the inlet velocity triangle and this is the outlet velocity triangle of Pelton wheel turbine. ठीक है. अब अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो V1 आपका किसके बराबर होता है? Absolute velocity of the jet coming out from the nozzle will be equal to the wheel velocity at inlet. यानी कि आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी और wheel वेलोसिटी बराबर होंगे इनलेट ट्राइंगल में. और U1 क्या है आपका? U1 आपकी पेरिफेरल वेलोसिटी है एट द इनलेट. तो आपकी जब एब्सोल्यूट वेलोसिटी V1 है, पेरिफेरल वेलोसिटी U1 है, तो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? रिलेटिव वेलोसिटी विल बी
v1 माइनस u1। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमें क्या कोई ऐसी वैल्यू गिवन है जहां से हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें अदर वैल्यूज गिवन है, फॉर एग्जांपल हमें ग्रॉस हेड गिवन है, हमने फ्रिक्शन हेड कैलकुलेट कर लिया है, वैल्यू ऑफ फाइव हमने कैलकुलेट कर ली है, के यू गिवन है, ठीक है, सी वी गिवन है। तो उन सब वैल्यूज का यूज करते हुए अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो v1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, v1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सी वी इक्वल्स टू वी एक्चुअल डिवाइडेड बाय वी थियोरेटिकल। तो हमारा v1 कितना आ जाएगा एक्चुअल, सी वी इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh, वेयर g इज द ग्रेविटी, h इज द नेट हेड। तो नेट हेड हमने कैलकुलेट कर लिया था 340 मीटर। सो by putting the value of known parameters, that is coefficient of velocity g 9.81, h 340, the value of absolute velocity is 81.67 मीटर पर सेकेंड। अब जब हमको v1 मिल गया, ठीक है, और हमको स्पीड रेशियो की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, वैल्यू कितनी गिवन है स्पीड रेशियो की, 0.45। तो आपको मैंने बताया था डिजाइन एस्पेक्ट्स जो थे आपके पेल्टन व्हील टरबाइन की, तो उसमें आपका जो पेरिफेरल वेलोसिटी था वो क्या था, के यू अंडर रूट 2gh, इट मीन्स के यू इंटू 2gh, दैट इज द थियोरेटिकल वेलोसिटी। सो के यू इज गिवन टू अस एज 0.45, ठीक है, आपको g की वैल्यू पता है, आपको h की वैल्यू पता है, तो फाइनली आपका u की वैल्यू क्या हो जाएगी, पेरिफेरल वेलोसिटी 36.75 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये वैल्यू हम नोन फाइंड आउट कर लेंगे v1 और u, ठीक है। इसके बाद आप जो रिमेनिंग टर्म बचे वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप ध्यान से देखिए इनलेट ट्राइंगल और आउटलेट ट्राइंगल को, ठीक है। तो आप अगर इससे देखो, आपका u पता चल चुका है आपको, v1 पता चल चुका है आपको, तो v1 माइनस u करेंगे तो vr1 पता चल जाएगा, ठीक है। तो vr1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो vr1 आपका हो जाएगा वैल्यू ऑफ v1 माइनस वैल्यू ऑफ u, इट विल बी 44.92 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इनलेट ट्राइंगल में आपको पता है आपका v1 vw1 के बराबर होता है, तो vw1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आपकी v1 की वैल्यू है, दैट विल बी 81.67 मीटर पर सेकेंड। अब आउटलेट ट्राइंगल की बात करते हैं। आउटलेट ट्राइंगल में आपको क्या क्या वैल्यू पता है, फाई आपको पता है, फाई आपका कैसे पता चला था, 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो 180 डिग्री माइनस 165, तो आपका कितना आ गया था, 15 डिग्री फाई की वैल्यू, ठीक है। और ये u2 की जो वैल्यू है, ये u2 की वैल्यू जो है ये वही रहेगी जो सिंपल u की है, क्योंकि हम कहीं फ्रिक्शन काउंट नहीं कर रहे, तो आपका जो u की वैल्यू है वही आपकी u2 रहेगी, ठीक है। अब वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब फ्रिक्शन जब मैं बोल रहा हूँ फ्रिक्शन हम काउंट नहीं कर रहे, तो आपकी Vr1 और Vr2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो वो कितनी है, Vr1 अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये वाला 44.92, तो यही V2 की वैल्यू, वो Vr2 की वैल्यू होगी, एंड दैट विल बी 44.92 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बेटा आपको Vw2 निकालना है। ये सारी वैल्यू हम निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें पहले पावर निकालने की, वर्क डन पर सेकंड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें Vw2 की वैल्यू निकालनी है। अगर आप पूरा ये ट्राइंगल देखें, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और इसमें cos फाई की वैल्यू निकालें, तो cos फाई आपका क्या होगा, cos फाई विल बी u2 प्लस Vw2 डिवाइड बाय दिस Vr2, ठीक है। तो यही मैंने किया है यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Vr2 cos फाई इक्वल्स टू u2 प्लस Vw2, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए Vw2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको u2 पता है, u की जो वैल्यू थी वही u2 की वैल्यू है, ठीक है। Vr2 की वैल्यू पता है आपको 44.92, ठीक है, cos फाई cos 15 डिग्री, ठीक है। इन सब की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे और Vw2 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 6.64 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी Vw2 की भी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास वो सारी वैल्यूज आ चुकी हैं जिनसे हम वर्क डन पर सेकेंड निकाल सकते हैं। वर्क डन पर सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट विल बी रो ए v1 Vw1 प्लस Vw2 इंटू पेरिफेरल वेलोसिटी, ठीक है। तो रो क्या है आपका 1000 है, क्यू की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 2.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। Vw1 हम निकाल चुके हैं,
दैट इज इक्वल टू v1, ठीक है। तो वो आपका हो गया 81.67 मीटर पर सेकेंड, और vw2 अभी हमने निकाला था, दैट इज 6.64, ठीक है। वो आप प्लस कर दोगे यहाँ, और पेरिफेरल वेलोसिटी क्या आई थी हमारी 36.75। तो इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वर्क डन पर सेकेंड की, वो मिलेगी 7139863 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब पावर निकालनी है, तो क्या होगा, पावर निकालने के लिए आपको वर्क डन पर सेकेंड को जस्ट 1000 से डिवाइड करना है, एंड यू विल गेट द पावर, एंड पावर विल बी 7139.863 किलोवाट। तो पहला पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का खत्म हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ पावर निकालनी थी। दूसरे में आपको निकालना है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ठीक है। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी में आपको पता है, आपका न्यूमरेटर में क्या रहता है, वर्क डन पर सेकंड, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या रहता है, वर्क डन पर सेकंड, और आपका नीचे काइनेटिक एनर्जी रहती है। तो आप जब पूरे इस इक्वेशन को सॉल्व करके लेके आते हैं, तो आपके पास ये फॉर्मूला आता है 2 VW1 प्लस VW2 इंटू यू डिवाइड बाई V1 स्क्वायर, ठीक है। आपको VW1 की वैल्यू पता है, VW2 की वैल्यू पता है, यू की वैल्यू पता है, V1 की वैल्यू पता है। इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपको हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 97.3%। सो बोथ द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओवर, ठीक है। पता चल गया कि हमें पावर कैसे निकालनी थी। पावर हमने निकाली 700 139.863 किलोवाट, और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हमने निकाली 97.3%। ओके, लेट अस डिस्कस द सेकंड न्यूमेरिकल। Second numerical is like this: a Pelton wheel turbine is to be designed for the following specification. पावर दे रखी है आपको, इट मीन शाफ्ट पावर दे रखी है, दैट विल बी 9560 किलोवाट, ठीक है। और हेड दे रखा है, जिस हेड पे आपकी टरबाइन को रन कराना है, वर्क करना है, ठीक है। तो वो आपका हेड कितना दे रखा है, 350 मीटर। आपको आरपीएम दे रखे हैं, स्पीड दे रखी है रनर की, वो कितना दे रखा है आपको 750 आरपीएम, ठीक है। और ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन गिवन है, दैट विल बी 85%, ठीक है। एक और चीज गिवन है इसमें, जेट डायमीटर इज नॉट एक्सीडिंग 1/6 पार्ट ऑफ व्हील डायमीटर, ठीक है। इसका मतलब है हमारा व्हील डायमीटर लेटस से कैपिटल डी है, और स्मॉल डायमीटर आपका जेट का जो डायमीटर है वो स्मॉल डी से तो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी का जो रेशियो दे रखा है वो 1/6 है, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, द व्हील डायमीटर, डायमीटर ऑफ जेट, एंड नंबर ऑफ जेट। अब आप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, डिजाइन एस्पेक्ट्स ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन, ठीक है। और आपको सीवी की वैल्यू गिवन है, सीवी इज इक्वल्स टू 0.98 मीटर, सॉरी इट इज डायमेंशनलेस 0.985, और के यू की वैल्यू गिवन है, स्पीड रेशियो दैट इज 0.45, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप ध्यान से देखिए, आपको एन गिवन है, दैट इज 750 आरपीएम, ठीक है। हेड गिवन है आपको 350 मीटर, और पावर गिवन है 9560 किलोवाट। तो इन सारे डेटा का यूज करके हम अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो रेशियो ऑफ जेट डायमीटर टू व्हील डायमीटर आपको गिवन है, दैट इज स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 1/6। आपका कैपिटल डी बाय स्मॉल डी कितना होगा, 6। यानी कि आपका, अगर मैं ये बोलूँ, जेट का डायमीटर डिवाइडेड बाय रनर का डायमीटर, वो तो 1/6 होगा। लेकिन अगर मैं इसका जस्ट अपोजिट बोलूँ, कैपिटल डी रनर का डायमीटर डिवाइडेड बाय जेट का डायमीटर, तो वो 6 होगा। तो आप देखो, इसमें एच गिवन है आपको न्यूमेरिकल में, एच विल बी 350, ठीक है। और सीवी की वैल्यू गिवन है, तो आप एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं, v1 इक्वल्स टू सीवी अंडर रूट 2gh। सीवी आपको गिवन है 0.985, जी की वैल्यू आपको पता है 9.81, और एच की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 350। तो जब आप इसको कैलकुलेट करके लेके आएंगे, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट कितना आ जाएगा आपका, 81.62 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पेरिफेरल वेलोसिटी निकालनी है, यू।
तो u का फॉर्मूला क्या होता है, u इक्वल्स टू के यू अंडर रूट 2gh। तो के यू की वैल्यू आपको गिवन है 0.45 और g की वैल्यू है 9.81 और h की वैल्यू है 350। तो आपका u की वैल्यू क्या हो गई 37.3 मीटर पर सेकेंड। और u को हम और कैसे लिख सकते हैं, u इक्वल्स टू पाई डी एन बाई 60। अब आप ध्यान से देखिए, इस n की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 750 आरपीएम। ठीक है, u की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट करी है 37.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें जो आपकी वैल्यू आएगी d की वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, d इक्वल्स टू फ्रॉम दिस फॉर्मूला 60 u बाय पाई एन। तो u की वैल्यू आपको नोन है 37.3 क्योंकि अभी आपने निकाली है। ठीक है, n की वैल्यू आपको नोन है 750। तो आपकी d की वैल्यू क्या आ गई, d क्या है आपका रनर का डायमीटर। रनर का डायमीटर कितना आ गया आपका 0.95 मीटर। ओके, अब आपको निकालना है जेट का डायमीटर कितना होगा। तो जेट का डायमीटर निकालना बहुत ईजी है बेटा, क्योंकि आपको कैपिटल डी बाय स्मॉल डी दे रखा है। कैपिटल डी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। ठीक है, आप सारी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आपको स्मॉल डी की वैल्यू पता चल जाएगी और स्मॉल डी की जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 0.158 मीटर। अब सबसे लास्ट जो आपको निकालना था इसमें, वो निकालना था आपको नंबर ऑफ जेट, आपके कितने जेट होंगे। तो आप लास्ट लेक्चर में देखिएगा, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर आपको वीडियो डाली है, उसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ जेट जो निकालना होता है वो आपका होता है टोटल डिस्चार्ज। ठीक है, टोटल डिस्चार्ज डिवाइड बाय डिस्चार्ज बाय वन जेट। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, डिस्चार्ज फ्रॉम वन जेट, एक जेट से आपका कितना डिस्चार्ज होगा। तो आपको एब्सोल्यूट वेलोसिटी पता है और जेट का डायमीटर पता है, तो आप निकाल सकते हो ए इंटू वी वन, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू वी वन। वी वन की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, दैट इज 81.62। तो सारी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए और आपका स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी 1.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको टोटल डिस्चार्ज निकालना है। टोटल डिस्चार्ज निकालना है, टोटल डिस्चार्ज आपका कितना होगा, टोटल डिस्चार्ज आपका होगा, निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल इफिशियंसी गिवन है और ओवरऑल इफिशियंसी क्या होती है, शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय वाटर पावर। शाफ्ट पावर आपको पता है, शाफ्ट पावर कितना हो गया 9560। ठीक है, और वाटर पावर क्या होती है आपकी रोजी क्यू एच, रोजी क्यू एच। तो इसकी जगह हम ये डब्ल्यू देख सकते हैं। ठीक है, इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका रोजी की वैल्यू होगी, ये आपका एच जो आपको दे रखा है दैट इज 350, 9.81 जी की वैल्यू है। ठीक है, और ओवरऑल इफिशियंसी आपको दे रखी है 85%, तो वो 0.85 हो जाएगी। ठीक है, तो कैपिटल क्यू निकल आएगा आपका, कैपिटल क्यू निकल आएगा। ठीक है, तो वो आपका आएगा 3.27 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ जेट क्या हो जाएगा, टोटल डिस्चार्ज बाय द टोटल नंबर ऑफ जेट्स डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज बाय वन जेट। तो आपका क्या आ जाएगा 3.27 डिवाइडेड बाय 1.6, तो टोटल नंबर ऑफ जेट कितना आ जाएंगे 2। तो ये क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड था, डिजाइन एस्पेक्ट्स ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा आपका, एक तो हमने पूरा वर्क डन पर सेकंड निकाला, इफिशियंसी निकाली, पावर निकाली। दूसरे न्यूमेरिकल में जो हमने किया वो आपका डिजाइन एस्पेक्ट्स फार्मूला यूज करके किया। ठीक है, तो आई थिंक ये आज आपका लेक्चर ओवर होता है और आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट या कुछ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।